हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछले वीडियो में हमने कुछ जो कॉमन यूज के हमारे कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनके बारे में देखा था, NaCl और NaOH के बारे में। आज हम कुछ और कॉमन सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से जो नेक्स्ट है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, its chemical name is calcium oxychloride, or it is also called as calcium hypochloride, and its chemical formula is CaOCl2. It is calcium oxychloride. Now, how the bleaching powder is prepared? The method of preparation. Bleaching powder is prepared by passing the chlorine gas in the dry slagged lime. Dry slagged lime में जब हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमारे पास बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ड्राई स्लैग्ड लाइम दैट इज CaOH twice, calcium hydroxide. Slagged lime, when passes chlorine gas into it, then it forms CaOCl2, means bleaching powder, and water molecule gets removed out. Clear? So this is the reaction by which the bleaching powder is prepared. Clear? Nextly we have to know the properties of bleaching powder. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है, बेसिकली इट इज येलोइश इन कलर एंड अ पंजेंट स्मेलिंग केमिकल। ठीक है, जो क्लोरीन गैस इसमें से रिलीज होती है, ये क्लोरीन गैस एकदम पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है, तो ये येलोइश कलर का कंपाउंड है, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं। इसके अलावा it releases chlorine gas when kept open in the air. बाहर यदि एयर में हम खुला छोड़ेंगे तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, एंड दिस क्लोरीन गैस इज वेरी पंजेंट स्मेलिंग। क्लियर? नेक्स्ट, इट रिलीज क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब भी ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है। किस तरह से? जैसे इट इज bleaching powder when it reacts with dilute H2SO4, then it forms CaSO4 plus water molecules release and Cl2, means chlorine gas gets released out. Again another acid, that is dry HCl, dilute HCl. Two molecules of HCl will participate in the reaction and they form calcium chloride plus water molecules gets removed out and chlorine gas also liberated. So when bleaching powder reacts with dilute acids, then it also liberates the chlorine gas. This chlorine gas when reacts with water, ठीक है, ये क्लोरीन गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, chlorine gas when it reacts with water, then it forms nascent oxygen. Nascent oxygen means atomic oxygen, HCl plus nascent oxygen. It is nascent oxygen. Nascent oxygen means atomic oxygen. As you all know that all the gases except inert gases are present in their molecular form. But in this case, the nascent oxygen is released, and this nascent oxygen will behaves as an oxidizing agent. ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में फंक्शन करती है, तो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ द uses of bleaching powder. It is used in textile industries,
It is also used in paper industries for bleaching. Next, it is used in disinfection of drinking water. जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर होता है, जैसे बड़ी बड़ी टंकियों में आप देखते हैं पानी भरा हुआ होता है और वहां से पूरी कॉलोनी में या पूरे एरिया में सप्लाई होता है, तो उस वाटर को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. इसके अलावा दिस इज यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. Clear? So this is all about method of preparation, properties and uses of bleaching powder. Most important question for your exams. Nextly, we will discuss about baking soda. Next salt is baking soda. Clear? Baking soda. It is chemically known as sodium hydrogen carbonate and its chemical formula is NaHCO3. ठीक है. बेकिंग सोडा जिसे हम घर में अपने फूड प्रोडक्ट्स को फ्लफी बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं फूड मटेरियल में, जब इसको ऐड करते हैं और जब हम उसको बेक करते हैं, तो उस टाइम पर जब ये बेकिंग सोडा हीट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड मेक द फूड पार्टिकल फ्लफी. ठीक है. इसीलिए हम केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, फूड आइटम्स जिसको हमें फ्लफी बनाना है, तो उसको फ्लफी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. इट इज केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नाउ हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaCl. ठीक है. हमने जब NaCl के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहां पे हमने देखा था NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड. इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हम NaCl से ही इसको बनाने वाले हैं. When NaCl reacts with NaCl sodium chloride, when it reacts with water, carbon dioxide and ammonia gas, then it forms NH4Cl means ammonium chloride और इसके साथ हमारे पास बनता है NaHCO3. it means sodium hydrogen carbonate और baking soda. This is the method of preparation of baking soda. This baking soda is also prepared by using carbon dioxide gas. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके भी हम बेकिंग सोडा को बना सकते हैं. किस तरह से? हम NaCl के साथ NaCl के साथ तो इस तरह से बनाएंगे. दूसरा, हम इसको जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके भी बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा. इसके बारे में भी हम अभी पढ़ना है. तो यहाँ पे ये वॉशिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा NaHCO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव आउट. क्लियर? सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन को आप बैलेंस भी करेंगे. ठीक है. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेंगे. तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज बेकिंग सोडा. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा. क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट evolve out here. Only the baking soda will form. 2 molecules of baking soda will be formed. Now the properties. This is a white colored substance, white colored powdery substance, crystalline in nature and sparingly soluble in water. ठीक है. एकदम से वाटर में soluble नहीं होता. It is not readily soluble in water. It is sparingly soluble in water and its aqueous solution is basic in nature. That's why it is used as an antacid. क्लियर? तो यहाँ पे ये एक बेसिक नेचर का
एंटासिड बेसिक नेचर का हमारे पास होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन, और इसका यूज हम एंटासिड बनाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा व्हेन इट इज हीटेड देन इट फॉर्म्स, ये जो रिएक्शन है हमारे पास, आपने सोडियम कार्बोनेट का यूज करके बेकिंग सोडा को बनाया है। व्हेन दिस बेकिंग सोडा is heated, two molecules of baking soda, when this is heated then it again forms washing soda, sodium carbonate, carbon dioxide plus water. clear? तो on heating, ये आप इसे हीट करेंगे, on heating it again gives sodium carbonate, that is washing soda. Now what are the properties of baking soda? First one is the baking soda is edible. It is used to make the food items fluffy. Second one is it is also used in making soda water and beverages. Third one, it is used as antacid to minimize the acidity in the stomach. ठीक है, तो स्टमक की एसिडिटी को मिनिमाइज करने के लिए जब एसिडिटी हो जाती है तो उस टाइम पर हम इसे एज एंटासिड भी यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है, तो काफी सारे जैसे बाउंड्स वगैरह हमें हो जाते हैं, यदि कोई चोट लगती है तो उसको बेकिंग सोडा के सोल्यूशन से वॉश करने के लिए हमें एडवाइस दी जाती है, बिकॉज इट इज माइल्डली एंटीसेप्टिक इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लैबोरेटरीज एज लेबोरेटरी रिएजेंट्स। क्लियर? तो आज हमने दो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. बोथ ऑफ द सॉल्ट्स आर यूज्ड are very important for your exams. Clear? In our next video we will discuss about the next two salts, that is washing soda and plaster of Paris. Both of them are also very important for your exams. Thank you very much.